Hello, friends. Welcome back to Insight Learning. Today we'll be studying 3.1, which is Night of the Scorpion. Okay, so this is very good. This is a good poem. It's quite lengthy, to be honest, but इसका explanation आपको easily समझ आ जाएगा when I'll explain it to you. So yes, this poem is written by Nissim Ezekiel, right? He was an Indian Jewish poet, poet, actor, playwright, editor, and art critic. Okay, so playwright तक आप याद रख सकते हो for your appreciation stuff. Again, this is something अगर आपको पढ़ना है, so you can read. Definitely it's good while you read this क्योंकि you get a context about the poet who is writing the poem. Otherwise जब आप अपना appreciation prepare करोगे, whether it be from any of your books, Master Key or even Navneet ka digest, you will get all those stuff included in that. So उस हिसाब से टेक्निकली ज़रूरत इतनी नहीं भी है पढ़ने की. सो येस, इट्स इंट्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट या पोएम इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. सो चलिए हम पढ़ते हैं. सो ये पोएम में होता क्या है. स्कॉर्पियन, बिच्छू, आपको पता होगा, वो जो पोएट है उनकी मदर को काट लेता है. ओके, उसके बारे में ये स्टोरी है. And yes, let's just read the poem and understand much better. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and lanterns, through giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood. They said, "May he sit still." They said, "May the sins of your previous birth be burnt away tonight." They said, "May your sufferings decrease the misfortunes of your next birth." They said, "May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition." They said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. काफ़ी बड़ी पोएम है. और रुको, let's just read this first, ठीक है. So, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. The mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." Okay, so yes, this is a story जो कि एक पोएम में लिखी है, इसीलिए ये पोएम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, टू रीड. जैसे कि आपने देखा ही होगा, काफ़ी टाइम लग गया मुझे रीड करने के लिए, बट जस्ट इग्नोर दैट. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड पैराग्राफ वाइज. पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. ओके, बिच्छू ने मेरी मम्मी को काटा, ठीक है. स्कॉर्पियन ने स्टंग किया मेरी मम्मी को. पोएट ऐसा कह रहे हैं. 10 hours of steady rain, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एकदम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा
हैवी बारिश हो रही थी. इट वॉज अ स्टेडी रेन. जिस 10 आवर्स से पिछले 10 घंटों से बारिश हो रही थी. सो हम तो जानते ही हैं मुंबई में जनरली बहुत बारिश होती है. एंड व्हेन इट रेन्स अ लॉट पानी वानी भर जाता है वो सब. बट ये गांव की कहानी है, ठीक है. दिस इज़ नॉट मुंबई. सो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. ओके. had driven him to crawl beneath a sack of rice. ओके, सो जो वो स्कॉर्पियन है वो sack of rice के नीचे क्रॉल करते करते चला गया. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. अभी एक there was a store room, okay, जहाँ पोएट की मदर गई थी and there was stuff around, और वहीं स्कॉर्पियन ने उसकी मम्मी को स्टिंग कर लिया था. सो वहाँ पे देयर वाज नो लाइट एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि गांव है, यू नो, गांव में रात को लाइट चली जाती है. ये रात की पोएम है, ठीक है. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डेफिनेटली मीन्स कि रात के समय में ये सब हुआ है. सो इसीलिए उसकी मम्मी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया. देयर वाज समथिंग क्रॉलिंग, उसकी मम्मी को ऐसा लगा, बट देन उसने तब तक उसकी मम्मी को काट ही लिया था स्कॉर्पियन ने. सो स्कॉर्पियन जहरीला होता है, ठीक है. सो पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक बेसिकली मीन्स हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेड, बेकार क्वालिटीज, हैविंग क्वालिटीज लाइक डेविल, ठीक है. टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन. रिस्क्ड, ओके. बेसिकली उसने क्या किया, उसने उसकी मम्मी को काटा एंड देन वो चिल्लाई होगी. सो डेफिनेटली उसकी आवाज़ से वो डर के मारे वापस से बारिश की तरफ जाने लगा और बाहर निकलने लगा, ठीक है. ही ट्राइड टू एस्केप द डार्क रूम. बेसिकली द पीजेंट्स केम, द पीजेंट्स, ओके. बेसिकली पीजेंट्स योर इज फार्मर्स, है ना. पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स. केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज. दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ कलेक्टिव नाउन फॉर फ्लाइज, आई फील. हाँ, वही है. सो कलेक्टिव नाउन फॉर फ्लाइज इज स्वॉर्म्स. सो वो कैसे आए, लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज. दे बस्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times. अब आपको पता है ये विलेज की कहानी है. विलेज के लोग आर मोर रिलीजियस, ठीक है, कंपेयर टू सिटी पीपल. सो दे वर टेकिंग God's name 100 times to paralyze the evil one. Paralyze basically means to stop an activity of the evil one, ठीक है, ताकि वो रुक जाए, ताकि वो स्कॉर्पियन इधर उधर ना जा पाए. वैसा वो प्रे कर रहे थे विथ कैंडल्स एंड लैंटेन्स. ओके. सो मैंने बताया लाइट नहीं होती, सो कैंडल और लैंटेन्स लेके सब लोग गांव के आ गए थे. फार्मर्स बेसिकली आपको पता है गांव में मैक्सिमम लोग फार्मिंग करते हैं, राइट. सो ऑलमोस्ट सब आ गए थे. रात का समय था, बहुत बारिश हो रही थी, तो भी सब आए थे. दिस इज़ शोइंग द यूनिटी बिटवीन पीपल इन विलेज. यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता होता, समटाइम्स ऐसा होता तो नहीं है, बट स्टिल दे से कि आपके बाजू में कौन रह रहा है आपको ये भी नहीं पता होता. बट गांव में यू नो एवरीबडी नोज एवरीवन, एंड इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवन gathers and makes they find the solution for it. So yes, that's something that we can learn from here. Another thing is throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls. They searched for him. सब स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे पर वो मिला नहीं. They clicked their tongues. Okay, so how you click your tongues? लाइक दिस. बेसिकली एक डिससेटिस्फैक्शन जब हमें होती है, सो वी यूजुअली क्लिक टंग्स, वही बताया गया है. विद एवरी मोमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, ठीक है. अब उनका ना वो बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, ठीक है. विलेजर्स आर यूजुअली सुपरस्टिशियस ना. अभी आजकल एजुकेटेड सब होने लगे हैं, बट पहले के टाइम पे तो एवरीबडी वॉज वेरी सुपरस्टिशियस. सो व्हाट दे यूज्ड टू थिंक इज अगर स्कॉर्पियन हिलेगा
तो उसकी मम्मी को ज़्यादा दुखेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है, बट वो ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। मे ही सिट स्टिल, सो व्हाट दे वर थिंकिंग कि अरे वो ज़्यादा हिले ना स्कॉर्पियन, नहीं तो उसकी मम्मी को ज़्यादा दुखेगा, पेन होगा। सो मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बॉन्ड अवे टू नाइट। सो उसकी मम्मी को वो लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि आपके पिछले जन्म के जितने भी पाप है, सिंस बेसिकली मीन्स जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में भी, सिंस इज बेसिकली बुरे कर्म, राइट। आपके जितने भी सिंस हैं पिछले जन्म के बॉन्ड अवे टू नाइट मतलब ख़त्म हो जाए। उन्होंने ऐसा कहा, मे योर सफरिंग्स डिक्रीज। सफरिंग बेसिकली आप जो ये तकलीफ़ झेल रहे हो वो कम हो, आपके जो मिसफॉर्च्यून्स हैं नेक्स्ट बर्थ के वो कम हो जाए, मतलब जो बेकार चीज़ें हैं बेसिकली आपने जो की हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में भी, वो सारी ख़त्म हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल योर ईविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। जो भी आपने ईविल काम किया है वो सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, आपके अच्छे से आपका बुरा कम हो जाए, मतलब बेसिकली आपकी अच्छी चीज़ें ज़्यादा हो, बुरी चीज़ें कम हो, ऐसा कुछ हो जाए। डिमिनिश्ड या become diminished basically means कम होना, less, okay, reduce, see, by your pain may the poison purify your flesh। जो poison है वो आपके flesh को purify कर दे। flesh is basically skin, okay, so yes, of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around। अब गाँव के लोग क्या करेंगे, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, so they sat around on the floor, और मम्मी उसकी बीच में पड़ी हुई थी और आजू बाजू सारे विलेजर्स थे। सो द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच फेस, बेसिकली everyone was not so happy, they were very tensed about the situation and they weren't doing anything at all abhi tak to। Let's see what happens next। more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rains, okay, and the endless rain। so basically और भी ज़्यादा कैंडल्स आए, और भी ज़्यादा लैंटर्न्स आए, और भी नेबर्स आ गए, सब इकट्ठा हो गए। और उसकी मम्मी शी ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू ट्विस्ट हर लेग और शी वॉज ट्राइंग टू ट्विस्टिंग, बट शी वॉज ग्रोनिंग ऑन द मैट। ग्रोनिंग बेसिकली मीन्स दर्द, उसकी मम्मी को दर्द हो रहा था, तो बेसिकली शी वॉज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ साउंड कि मुझे दर्द हो रहा है, सम वॉट लाइक दैट, राइट। mournful sound that is basically for conveying pain or grief। my father, अब पोएट की जो फादर है उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। सी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ, उनके ये फादर का पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट। जब वो फार्मर्स आते हैं, पीजेंट्स आते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। this one is something also important which you should pay attention to। so yeah, जब आप पढ़ते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ये फादर वाला पैरा और वो पीजेंट्स वाला पैरा, दैट इज़ समवॉट इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम टाइम्स उसमें से चीज़ें पूछी जाती है, राइट। सो माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट। हाउ वॉज हिज फादर? स्केप्टिक रैशनलिस्ट। या देखो सारे एडजेक्टिव्स है विच यू मे बी आस्क्ड, पूछ सकते हैं, कोई मतलब ऐसा है नहीं कंपल्सन, बट हाँ पूछ सकते हैं कि फादर की क्वालिटीज़ बताओ, तो आप बता सकते हो ना, एक दो करके ऐसे ऐसे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, सी नाउ दिस इज़ अ लाइन वेयर दे हैव यूज्ड एंटोनिम्स, राइट, कर्स एंड ब्लेसिंग। सो या आप इसका फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करके रखना, ओके। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। ही इवन poured a little paraffin। paraffin is kind of हाँ, paraffin आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, इट इज़ क्या बोलते हैं, इट इज़ अ केमिकल। so he poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। उन्होंने क्या किया, वो जो दवाई थी, वो जो केमिकल था पैराफिन, वो उनकी मदर के टो पे डाला और उस पर मैच लगा दिया, मैच स्टिक। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, जिससे वो जलने लगा उनका टो,
पता नहीं क्या कर रहे थे, बट ठीक है, अब जो भी कर रहे थे हमको तो पढ़ना ही है. ओके, सो आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स. वाइल ही वॉज डूइंग दिस, उनके फादर वो पता नहीं टोई जला रहे थे शायद, या फिर पॉइजन वाला एरिया थोड़ा हीट अप कर रहे थे. तब तक क्या हो रहा था, जो होली मैन थे वहाँ, होली मैन इज़ बेसिकली लाइक पंडित्स. ओके, जो पंडित जी होते हैं, सो वो अपने राइट्स परफॉर्म कर, राइट्स टू टेम द पॉइजन with an incantation. Incantation basically means chanting. He was chanting some words. He was chanting to have magical power. Okay, so जैसे उनके जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो होली मैन बोल रहे थे, सो दैट द पॉइजन टेम्स डाउन, और उसकी मदर को ठीक लगे. सो क्या हुआ, ये सब करने से कुछ भी नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, बट स्टिल आफ्टर 20 आवर्स, ओके, 20 आवर्स के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. उनको दुखना बंद हुआ. बेसिकली उनका जो पॉइजन था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया. माई मदर ओनली साइड, उनकी मदर ने क्या कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. सो यर द मदर वॉज एक्चुअली कंसर्न्ड फॉर हर चिल्ड्रन, और वो कहती है थैंक गॉड कि स्कॉर्पियन ने मुझे ही काटा, मेरे किसी बच्चे को नहीं काटा, अदरवाइज उनका क्या होता ऐसा. सो व्हाट दिस पोएम बेसिकली टेल्स यू, दिस टेल्स यू सेल्फलेस लव ऑफ द मदर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ मदर who is stung by the scorpion. So yes, this was the poem. Basically उसकी मम्मी को स्कॉर्पियन काट लेता है, एंड शी इज़ स्टिल वरीड अबाउट द चिल्ड्रन आफ्टर शी गेट्स अ बिट बेटर. ओके, यस, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इतना कुछ होता नहीं है, बस पीजेंट्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फादर क्या करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, राइट. दूसरी बात, टेक्सचुअल क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए, आई मीन टू से मार्जिनल क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं आपको. ओके, एंड इंग्लिश वर्कशॉप इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू. ओके, MCQs अच्छे से कर लो. MCQs के बाद yeah, you can do all these things as well. See, figures of speech, another important thing I told you, इसको तो अच्छे से करना ही है. फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर ही लेना. हर पोएम के ना, मैंने आपको बताया था, हर पोएम के लाइन के बाजू में सी लाइक दिस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, सब लिख के रखो, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज व्हेन यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, वार्मिंग अप इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसमें पता नहीं इतना कुछ है नहीं, बट फिर भी कर लेना. एंड या दिस वाज द पोएम फॉर टुडे. So yes, writing figures of speech for each line in your textbook is something that you should consider important. और वहाँ लिख के ना आप एक बारी अपने डाइजेस्ट या फिर जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उससे आप उस फिगर्स ऑफ स्पीच का वो लाइन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, मतलब हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट बेटर. ओके, सो यू नो English is something in which you can't learn things, but if you understand well, if you pick up the keywords and write those keywords in your examinations, it will definitely make your paper a little bit different, or I may say a little bit top notch from other papers. So yeah, writing keywords in your answers is definitely very important. So wahi karo. What you will do is write the figures of speech, और figures of speech की तैयारी आप पोएम समझने के बाद ही कर लो, so that half of your work for your 2 marks is done, right? So this was our video for today. I hope that the poem was easy to understand. If there's anything else that you want to ask me, don't forget to comment down below. I'll definitely try to resolve your query, and yes, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.